Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co. Hello, hi everyone. A very special roundtable today, and we are calling it the Crypto OGs Roundtable. बहुत ही हमारे साथ आज esteemed guests हैं, and all of them are truly have been in the crypto space for a while now, and I think personally very excited to host, and I'm glad that all of you could take out the time. So without any further ado, I think एक round of introductions कर लेते हैं. And probably uske baad we can start off like with a more detailed discussion. I am Parth. I head CoinSwitch Ventures, which is CoinSwitch's corporate venture capital arm. We have been investing in early stage Indian Web3 companies for the past 1 year. And with me from the CoinSwitch team today is Shubham. Shubham, brief intro, please. Sure. Hi, guys. This is Shubham. You have seen me in the past workshops. I work for the CEO's office, and I am responsible for CoinSwitch trading, listing, and other things here. And really grateful to have such great people on board. Pratik, Pareen, Kashif, and Hitesh bhai. Thank you so much for being here. Hitesh, Kashif, personally big fan of both of you, and really appreciate the work that you both have been doing for the crypto community so far. Thank you, Shubham. Thank you very much for your kind introduction. Thank you. So I will try to introduce you four very special buckets जो मेरे को लगता है कि आप चारों ने ये चार चीजें बहुत अच्छे से करी हैं for the ecosystem in India. तो Pratik is the investor. Pratik is from GravityX Capital, and he has been investing in this space for a while. Pareen को मैं कहता हूँ enabler. Pareen has been he's been enabling the Web3 ecosystem back from his days at WazirX, and then later on through Buidlers tribe. काशिफ आपको मैं बोलता हूँ कम्युनिकेटर. लाइक आपने जिस तरीके से क्रिप्टो का नॉलेज को मासेस के लिए बनाना शुरू किया, आई थिंक दैट हैज बीन अ ग्रेट टूल फॉर पीपल टू गेट एजुकेटेड अबाउट दिस स्पेस. तो आपको मैं कम्युनिकेटर का टैग देता हूँ, एंड हितेश को मैं टैग देता हूँ रिसर्चर का. लाइक ही इज द, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो रिसर्चर्स इन द कंट्री. अगर आप इसको हितेश को फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज ट्विटर पे उनके थ्रेड्स पढ़िए, सबस्टैक पे वो लोग बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं. इसके साथ साथ लाइक आई विल पास ऑन द बटन एक एक करके. इफ यू कैन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्रतीक, Pareen, Kashif and Hitesh. Sure. Thanks, Parth, for the introduction and inviting us over here. Hey guys, this is Pratik. I'm one of the general partners at GravityX Capital. We started GravityX Capital just in the COVID times. The primary aim was to help and support early stage, Web3 companies coming out of India and also, Southeast Asia. So far, we have a portfolio of around 35 plus companies, and we majorly invest into DeFi, NFT, GameFi, and infrastructure projects. And parallelly, since the last year, FTX and Luna crash, we have started few more initiatives to support, primarily Indian startup ecosystem. We have launched an accelerator program called Graviton, which supports early stage startups right through providing some seed funding with a cohort-based approach. And recently, we have also launched Levitate, a scale-up program, which is more focused on mid and late stage companies. Yeah. Awesome. Thanks, Parth, Shubham, for doing this. It's a great initiative and gives us a chance to reflect. Thank you for having me. And I'm Pareen. I've been in crypto since 2017, mostly as a writer. Joined WazirX as their early marketing team member in 2020. Worked there for 1.5 years during the bull madness last time, and started investing in crypto startups. While investing, I realized that there's a dearth of people supporting early stage builders. So ended up creating Buidlers tribe 2 years ago with a friend, and I've just quit Buidlers tribe to go back to writing and doing other ecosystem stuff as of now. So glad to be here. Glad to have you, Pareen. Kashif sir.
Yeah, so my name is Kashif, and I started my journey in 2017. Everybody knows about Crypto Qanun. Started, a crypto regulatory media platform. So that was unique during those times, and we covered, the Supreme Court case. That was a turnaround for us. So I've been in this space for close to 6-7 years now, and specifically into crypto education. And I think people like that content. I'm active on Twitter and YouTube. So that's the way it is. My only goal is to like educate people more about what's happening around, especially in the regulatory space and what's going to happen next. Especially like the way Binance episode that's happening today. So that's something that's happening. It's already been covered in the headlines, but there is something behind those headlines. I am interested in generally in those stories, and I try to bring those stories the right narrative and try to see if there is some wrong narrative that's happening. So try to give a counter to that. People just enjoy the content, and I'm really grateful and happy to be here, and very blessed that people do acknowledge my good work. So yeah, it's an amazing feeling. Thank you. Thank you, Kashif. Thank you so much. Hitesh, over to you. Yeah. Thank you, Parth, for inviting me on this particular channel. And it's great to be with some of the great personality I've been following since a long time. Pareen and Kashif is a good friend. So I'm Hitesh, and I've been in the space since 2016. I started India's first crypto media publication, it's blockchain.com that time. And I also started IBC Capital, IBC DAO. So I have founded 3 startups in Web3 so far. And my current work is revolving around mainly creating these project breakdowns on fundamental and on-chain level. And I'm trying to educate people more about like you can create a sense of what is happening behind the price action thing. Like there is some data which can tell you the story about like particular coin it is moving well. That there is some there should be some reason for that. So yeah, man, I'm trying to educate this very niche on-chain and fundamental to a global audience, I would say. I'm mostly active on Twitter. I also run a newsletter these days. I also have a YouTube channel. And I also have an academy where I'm also launching these courses on fundamental and on-chain analysis. Yeah. And that is very important. I think like मतलब a lot of people who are attending the call also today उनको लगता होगा crypto के fundamentals क्या होते हैं. Crypto में है fundamentals ऐसे ही like हवा में value नहीं बन रही है. There is like actual use cases that are now live. That is why this particular cycle जो bull और bear market के cycles चल रहे हैं, इस cycle में we are now finally seeing institutional adoption become mainstream. तो जब institutions आना शुरू होते हैं उसके बाद the next leg is only up. So all of us I think are very bullish in terms of how this space has evolved. But पहले मैं जाना चाहूँगा आपके roots पे वापस. So before we head off into what happened in 2023 and what happens in 2024, I want to ask each of you कि आपको crypto में कैसे interest आया and आप यहाँ पे कैसे आए. I will probably start with my story. I used to work at JP Morgan, which is like एकदम crypto के opposite, like सबसे ज़्यादा centralized बड़ा institution. But उस institution के अंदर ही 2018 के time पे blockchain as a technology जो है उस पे interest develop होना शुरू हो गया था. And luckily for me again like fate of luck कि मैं सिंगापुर में एक rotation पे गया था जहाँ पे disruptive technologies के बारे में एक session था. एंड उसमें मशीन लर्निंग AI ब्लॉकचेन चीजें थी. और मेरे को जब पहली बार ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो फॉर मी इट वाज लाइक दैट यूरेका मोमेंट कि अरे ये तो बैंक्स और कोई भी बेसिकली कोई भी चीज जिसमें ट्रस्ट की जरूरत होती है और मिडिल मैन की जरूरत होती है उसको आप ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर सकते हैं. सो फॉर मी दैट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट एंड आई डिसाइडेड टू मूव माय करियर इन दैट डायरेक्शन. पहले इनिशियली एट JP Morgan itself and then like diving head on into crypto full time. So आप लोगों की भी स्टोरी में जानना चाहूंगा कि what got you interested. Was it only price action कि आपको भी लगता है कि ये टेक जो है वो सही में revolutionary है. I will start off with मैं काउंट क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ. प्रतीक आपसे शुरू करते हैं. So I think the first time when this cryptocurrency thing started was in 2016-17, right? At that point of market that was considered as a bull market. And I was just sitting with friends and everyone is like आज मैंने 50,000 डाले कल 1 लाख हो गए. And that was happening for weeks. And this is how one of the friends said you should also put in. I said okay, fine. So there used to be an exchange called CoinX or something that was run by a friend's friend. So he said okay, let's put it and see it. So first I think 3 weeks was pretty phenomenal. Some crazy returns coming out of it.
And then suddenly, the downfall, the bear market, it started it, getting down. And then 2017. finally at one day, the exchange was just shut and it was there. So in between 2 years, 18, 19, I think was just silent. Not a lot of activity happening, around. In 2019 end, I got a chance to visit Stanford Blockchain Labs over there. And then I started interacting with few blockchain founders over there. And then I realized it's not, I mean, decentralization is core part of it, but from the technological standpoint, there's so much of innovation which is happening, and so much of mass disruption, could be carried out in that way. So that was a good point, and it eventually led into, angel investing sort of thing. And when the COVID times hit in, we already had, with few friends, we had like about 5, 6 portfolio companies that, we were putting in small angel checks. And as we got deeper into it, I think we loved the game. Like you get in, startup founders are there, you explain them, because we in the previous journey I was a startup founder as well, and went through it. What are the ups, downs, and what are the downfalls, what things not to do, right? So this relevant experience was really good even for the startup founders. And then we started, slowly acquiring the knowledge on it. So at that point, I think 2020 DeFi was, one of the mainstream things, which were happening. Slowly, the narrative started shifting to NFT, GameFi, and then, the infrastructure projects. So in the last, I think 3 years, we tried, keeping the pace up to it. And, this is how, we entered. And I think that was the moment. And I still feel that's the best decision. So basically, Yeah, Parth. so basically, like came for the price action but stayed for the innovation. Yeah. Pareen, आपका भी similar story है? Like you think like Yeah. It all starts with trading, I think, mostly for almost everyone. For me, definitely it started because one friend said that I laga Bitcoin, and I had been exposed to that much earlier, 2015 odd, I think. A lot of people in startup circles started talking about it, but I was like, no, this is all scam. 2017, I ended up buying a little bit, went up in crazy amounts. I started trading, and 2018 and 2019 I was in BTFD mode. So I was just buying the fucking dip all the time and ended up losing almost everything that I had. So this of course started with a lot of greed, but the ICO boom or boom. bust or bubble, as they call it, actually got me interested in the fact that not only there's a great use case to Bitcoin, and Bitcoin definitely is one thing that really works very well, but also the fact that you could just go to the community and raise money. You don't need VCs mostly, and for a founder, that's a wet dream, I think, for everyone. That how do we go and just raise money from the community, although nothing materialized because everyone who raised money just scammed the community eventually. uh, but I think still it is a dream, and it is a possibility someday that when a founder starts what we typically call friends and family round, is actually friends and family, and not friends and family means discounted VCs today mostly. So that possibility, I think, still exists. I think I wrote something about this about 8 months ago, that token launches and fundraise is a real use case of blockchain, and this was not possible before that. You couldn't get a private limited company and have 10,000 people invest in that. So I'm definitely still looking forward to the fact that in some way we will have a much saner version of ICOs, and I think for now we proved that blockchain startups are here to stay. We know what I learned was that, of course, there is a lot of fluff, but the founders who are really working on solving transparency issues or solving issues of coordination in that sense by using blockchain, mainly Ethereum right now, is such a great cause that it's hard to ignore it. It's just Totally.
it is anti-establishment in every possible way, but in a very peaceful manner. You're not breaking down the current systems. What you're doing is you're giving people better systems to work with. And at the end, the market will decide. I think we are still already seeing that the market is deciding in favor of DeFi, at least, like Pratik said. More and more use cases will just unlock in the next few cycles, I think. So yeah, that's been my journey till now. No, totally agree with you, Pareen. And one point that I want to highlight, आपने बीच में बोला कि there's a lot of fluff in the market. This happens with any new technology. You will see, like, scamsters trying to like scam you because you don't know about what is happening, or you don't know what the underlying tech is all about. So that is not just happening in crypto. Happens in other. अभी मैं किसी का तो पढ़ रहा था, मतलब बहुत सारे examples है. Like US में there was a pharma company that raised a lot of money, and then they went to do the due diligence for it, like पीछे background में कुछ बनाया नहीं था उन्होंने. They were doing like faking numbers. So all of these things are rampant in other industries also. बस ये होता है crypto में बहुत ज़्यादा highlight हो जाता है. And probably उस चीज को बहुत अच्छे से जिन्होंने solve किया है वो है काशिफ भी like बहुत times I think इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस था उसकी कवरेज पे like my personal attention that is when I got to know कि इंडिया में भी like there are people who are fighting the good cause, and again अगर वो रूलिंग नहीं आती तो इंडिया में क्रिप्टो का सीन काफी like खराब हो सकता है. तो काशिफ, आपकी स्टोरी, how did you enter the space, and कैसे आपने how you've seen the space evolve even in India? So yeah, in 2016 there were a lot of Ponzi schemes that were floating around, and people were not aware about Bitcoin and Ethereum, and all these altcoins were like a distant dream. So in terms of what I saw when I wanted to learn more about Bitcoin, I figured out that there are not enough education platforms, Resources. right? There are not enough resources. I was able to understand English, so I had the privilege of reading some research papers and follow some Western YouTubers. But then I thought that in India there was people who were not uh, you know uh, who were not having the right platform from where to learn. And I think because of that, many people were investing in Ponzi scheme, and me myself was a victim of that. And probably that gave me a motivation to start something in this space. But that motivation executed, it took a little while because I was into my job, and I continued to have that motivation but the pivot came, the moment came when RBI came up with a ban. And when RBI came up with a ban, on crypto, so that was a time when there a lot of misinformation was happening. And on 6th of April 2018, the ban was there, and I think in the morning ban came, and in evening we were born. When I say we, me and my co-founder Muhammad Danish is a High Court and Supreme Court. So we together started this platform just for the information, just for the right information on the regulatory side. Because since I was not a regulatory expert, I was a media expert. So I wanted somebody to come along in the regulatory space. So me, my co-founder Muhammad Danish, and we had no plans of, because we were not YouTubers, we were not influencers, we were like simple plain guys who were doing their professional jobs. But that ban was not. We were not happy with that. Not because we were Nobody was. we were not because we were invested in crypto, and there was some personal interest. No, because we were aware that what was happening globally, and the ban is not just right way to do it, right? So the only point was that, and there was a lot of misinformations that was happening at that time by local YouTubers who were trying to decode legal papers and legal stuff in their own ways. And obviously when you are not an expert of something and you try to decode it, without going deeper into it, it can lead to a problem. So there we had this incentive. We kept ourselves anonymous for at least 4 months. People continued to figure out who is behind this. People started predicting that Satoshi Nakamoto in India has arrived and stuff like that. For 3-4 months, people were crazy trying to find who is behind this platform. And then after 3-4 months, we revealed our identities and said, okay, we are the ones. Because then people started calling us on YouTube and stuff like that. Then we said we cannot just have a Twitter handle. We need to have a YouTube
channel as well, because there were some long formats, and during those time Twitter had a limitation of those words. So it was not possible to explain everything through Twitter. Then we figured out, okay, we need to have a YouTube channel. And I think that YouTube and Twitter was one of the most uh, you know go-to media sources, not just for Indians, but for Globally. globally, from BBC to Forbes. Everybody was looking at that Twitter handle to get the information. So that became the uh, genesis of the right information in India, the Twitter handle. So we are proud of that. I think that image and that content building gave people a lot of goosebumps, and people started taking content building in a very serious way. It's like what Hitesh is doing today. Hitesh is Yes. inspiring the future generation to do Yeah. the content in a right way. Because एक- it's how you set the benchmark. I think in 2018 we had set that benchmark, and I think now going forward, Hitesh is leading in his own way and trying to set the new benchmark, and somebody else will do it probably 3 years, 2 years down the line, and that is how this inspiration goes from one phase to another phase. I think so. Very मतलब बहुत to ही मैं इसे पूरी तरह अग्री करूंगा. एंड स्पेसिफिकली आप जो हितेश के बारे में पॉइंट बोल रहे हैं, ट्विटर इज द सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिप्टो. मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ग्लोबली सब लोग जो भी अपना फर्स्ट किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले जाके ट्विटर पे देखते हैं कि इसकी कोई थ्रेड है या नहीं. एंड उस फॉर्मेट में लाइक आई थिंक हितेश इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. वो लॉन्ग फॉर्मेट थ्रेड्स बनाते हैं, पर्टिकुलर कोई टोकन को उठा के उसका डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. बट मेरे को पता चला है परीन से कि हितेश तो बहुत पहले से हैं क्रिप्टो में, तो मेरे को भी नहीं पता था कि हितेश की लाइक एक बैकग्राउंड स्टोरी है बिफोर ऑल द रिसर्चिंग. सो हितेश, आपको क्या किस चीज ने इंटरेस्ट किया टू गेट इनटू क्रिप्टो? हितेश आप म्यूट पे हैं, इफ यू आप अगर अनम्यूट कर कैन यू हियर अस? Yeah, I can hear you. So, sorry, I was in mute. So before entering into crypto, I was building startups. So हितेश, अगर आप एक रिक्वेस्ट आ रही है यूजर से, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आई हिंदी थिंक बात करो, कोई दिक्कत नहीं भाई. तो हाँ, मतलब so yeah, मिक्स कर सकते हैं आप इंग्लिश yeah, yeah, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, Hindi बट is हिंदी kind थोड़ा of ट्राई करिए क्योंकि Hindi is ऑडियंस की something रिक्वेस्ट है. Hindi is a very comfortable language, so हिंदी में अपन बात करें, क्या दिक्कत है, जनता को भी वही चाहिए. Right? So crypto में आने से पहले मैं स्टार्टअप रन करता था. I founded 3 startup before, and I was building this startup called Digital Gorkha. So it is similar to MyGate. It was a visitor management application. So सोसाइटी के गेट पे टैबलेट इंस्टॉल होता था, वहाँ पे कोई भी विजिटर आता था तो उसका सारी इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते थे. देन दे यूज्ड टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द होस्ट, एंड व्हेनेवर ही विल प्रॉब्ली कंफर्म द एंट्री. आई एम रियली सॉरी एक्चुअली फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. नो प्रॉब्लम. So whenever they will confirm the entry, उसके हिसाब से उसको एक्सेस मिलता था. नहीं, नो वरीज. Yeah, so उसको एक्सेस मिलता था. तो in that application, I was trying to create this decentralized identity system. So I was looking for some sort of tag for that. इसको कैसे अचीव किया जाए, right? So then I started looking on internet कि ऐसा कौन सा टैग है जो like एक decentralized way में ID system बना सकता है. I come from a hacking background. I was a hacker. Very early, one of the early hacker in India. Like I used to hack back in 2011, 11, and I used to run a cyber RB that time, Hindustan Cyber Force. So it was a kind of cyber RB of few Indian hackers created this army to probably just out of I would say देशभक्ति के हिसाब से ना, we used to deface Pakistani website and everything just to celebrate Independence Day, Republic Day. So I had that background, and I was also aware about something called I heard of Bitcoin like back in those days, 2012-13 के आसपास. I had a friend, he was told me that you should mine Bitcoin. He was mining Bitcoin passively. हमने Bitcoin mine भी किया like उसके साथ. I didn't know the process कैसे माइन करते हैं, but उसने मेरे साथ मिलके फ्लैट में था. He was mining Bitcoin, so I knew that something was happening. कोई Bitcoin है जिसको हम माइन कर सकते हैं. तो जब वापस back in 2014-15 के आसपास, when I was working on my startup and I was looking for this kind of integration of decentralized digital identity system, तो blockchain मैंने के बारे में मुझे मालूम पड़ा. ब्लॉकचेन पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड मिली, जो अभी भी ये प्रॉब्लम मिलती है हमको. जैसे स्पेशली इन केस ऑफ ऑनचेन की अगर बात करें तो अभी वो इशू अभी ऑनचेन इसमें हमको देखने को मिलता है. उस टाइम पे ब्लॉकचेन के बारे में ना ब्लॉग काफी लिमिटेड थे. देयर वाज ओनली सिंगल ब्लॉग गीक, जो आई थिंक विटेलिक के डैड का ही है.
So he used to run that blog, and that was the amazing platform जहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलता था. So I found this gap कि यहाँ पे you can probably create content on blockchain. You can educate people about blockchain. And मेरा दो कॉलेज में मैंने ब्लॉगिंग की हुई थी, so I had that exposure to blogging as well. So I started blockchain as a blog. कि मैं उसको ब्लॉगिंग करूंगा, and at the same time I was trying to build this decentralized digital identity system called Access. So Access was India's initial top 10 Web3 startup back in those days. तो हमने 6-7 महीने काम किया था, बट डेवलपमेंट साइकिल पे हम कहीं पे स्टक हो गए बिकॉज हमको रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई. But I got the exposure to blockchain, and I started working as a blockchain consultant with emphasis that time, 2016 के आसपास. And side by side blog भी I was running that along with that. And जब bull market आया तो हमने थोड़ा pivot किया crypto के ऊपर. And blog was very hit at one point of time. We used to get million page views 2017 के आसपास. And so its blockchain was the first venture. उसके बाद 2018-19 में I went into venture investing. So it was kind of community driven way of venture investing, like community pool वगैरह मैंने run किया उस टाइम पे. And उसके बाद में मैंने 2020 में I quit crypto because I had a major loss. So I quit crypto for a decent time, एक साल के लिए. 2021 में I came back and I started a venture fund called IBC Capital, and I exposed to NFTs. I was very excited about NFTs. काफी पैसा लगाया, काफी पैसा डूब भी गया NFT में. And at the same time, उस टाइम पे IBC DAO मैंने start किया because a lot of people wanted to collect BAYC doodles, but they had no money, right? So entry barrier was very high. So I thought fractionalize कर सकते हैं NFTs को, and you can probably के हिसाब से DAO बना के उसको हमने run किया, and like we almost sold close to $500 million in NFT sales, like जो Genesis था India में. I think it was one of the big number that NFT sales के साथ. So yeah man, that was the bull market story last year की. और अभी bear market आया था कि इंडिया में अभी ये गैप ज्यादा है. यहाँ पे इंडिया में लोग कंटेंट बना रहे हैं और इंडिया में लोगों को कॉइन में इंटरेस्ट ज्यादा है अभी. कई सारे इन्वेस्टर, आप जैसे रिपोर्ट भी हुआ था कि वी हैव मोर देन 10 मिलियन इन्वेस्टर्स, राइट? बट लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं. लोगों को पता ही नहीं कि किस तरीके से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या तरीके होते हैं, क्या टोकनोमिक्स होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है. सो मैंने एजुकेशनल कंटेंट बनाया यूट्यूब पे काफी लंबा, और फिर मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया की ऑडियंस को नहीं चाहिए. इंडिया की ऑडियंस अभी भी वही चाहती है कि उनको कॉइन बता दे कोई. तो मुझे रेस्पॉन्स सही नहीं मिला ऑनेस्टली यूट्यूब पे, तो मैंने छोड़ दिया वो. अभी मैं इस पे फोकस नहीं करता. पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया, ऑल्सो रन 2 दिन में पैसे डबल. हाँ, सब लोगों को वही थंबनेल वैसे बनाओ, लोग कंटेंट ही वही चाहिए. सो मेरा काफी एफर्ट उस पे गया, 18 महीने गए, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला. तो मैंने सोचा कि ट्विटर पे ही वापस अपन फोकस करते हैं. ट्विटर पे ग्लोबल ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस है जहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाती है. सो वहाँ पे आई ग्लोबल ऑडियंस स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग. सो या आई थिंक अभी ये चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, एंड न्यूज़लेटर, एंड आई एम आल्सो रनिंग दिस पॉडकास्ट. नहीं, बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे थे. मैं इनफैक्ट ये आपसे पूछने वाला था. मैं ये पूछने वाला था कि क्योंकि स्पेशली फॉर कंटेंट, बुल मार्केट में तो सब लोग आपके पीछे आते होंगे. काशिफ, आपसे भी क्वेश्चन है ये कि लोगों को चाहिए होगा कि और इन्फॉर्मेशन बताओ, मैं मिस आउट ना कर जाऊं कुछ. बेयर मार्केट में आपको खुद को मोटिवेट करके बनाना पड़ता है कि लोग को भाई एजुकेट हो जाओ, जान लो कुछ इस टेक्नोलॉजी के बारे में. बट क्या आप लोगों को भी ये फील हुआ है कि बेयर मार्केट में आपकी तरफ से प्रोएक्टिवली आपको बनाना पड़ता है कंटेंट, वर्सेस बुल मार्केट में जब लाइक यू नो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये टोकन ले लें या वो टोकन ले लें, ऐसा आप लोगों ने फेस किया है? यार मेरा तो देखिए पोजीशनिंग ऐसी है कि मेरे चैनल पे जब कोई आता है तो वो समझ जाता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. ये यहाँ पे ये वेब सीरीज नहीं है जहाँ पे मिर्जापुर की तरह कुछ एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. ये बीबीसी का वो शो है जो सबसे बोरिंग शो है. और मैं कहता भी हूँ, मैंने कहना छोड़ दिया, मेरी टीम ने बोला सर मत कहा करो, मतलब अच्छा नहीं लगता. मैं बोलो आई तो एम द ओनली इन्फ्लुएंसर हु बोल्डली क्लेम्स. मैं अपनी शुरू की वीडियो में बोला करता था कि वेलकम टू द मोस्ट बोरिंग चैनल इन क्रिप्टो. यहाँ पे कुछ लेने आए हो, कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ सिर्फ ज्ञान मिलेगा, लास्ट में बोर हो जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे. ये डिस्क्लेमर था मेरा, सिंपल, और वो आज भी है. बट इससे फायदा ये होता है कि जैसे हितेश की बात बिल्कुल ठीक है कि आज भी इंडिया में ना लोग कॉइन्स को, अभी भी देखो ना आपके कमेंट में क्या चल रहा है, शिबुनु का प्राइस बता दो, इसका प्राइस बता दो. तो यार ये आप रोक नहीं सकते. ये तो देखिए अल्टीमेटली इंसेंटिव के लिए हर बंदा चाहता ही है, और इसके लिए लोग, लेकिन ना आप अगर पोजीशन कर लो ना अपने आप को ऐसा, तो लोग एक बार जाके रियलाइज करते हैं एक पॉइंट पे जाके कि यार नहीं, अगर मुझे कोई
प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे राइट इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलेगी, तो यार वो वही था। तो ये थोड़ा सा ना लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट है मेरा, थोड़ा सा मेरे स्पेशली, और मुझे ये इंस्पायर किया सतोशी ने। तो सतोशी नाकामोटो का भी यही है कि उसने मोटिवेट किया है कि ना लाइफ को जीने का तरीका ये कि आप अपने लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट को अडॉप्ट करो, आप अपने फोकस होके जो चीज आपको अच्छी लगती है उस पे काम करो, बी फोकस्ड एंड अल्टीमेटली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। एंड आप बिटकॉइन को भी देख लो ना, 15 साल से उसने उसने उस पे काम किया कि भाई आप अब देखो, आप 15 साल बाद अब लोगों को उसकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। ब्लैक रॉक भी कह रहा है यार ओ शिट ईटीएफ, यार ईटीएफ ले आता हूं। तो अब दुनिया उसके पीछे तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो सिमिलरली आपको क्रिटिसिज्म ना लंबे समय तक मिलेगा। आपसे लोग बोर भी होंगे, आपको लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है यार, ये पागल हो गया है क्या। द मोमेंट लोग आपकी सक्सेस की सबसे पहली निशानी होती है जिस दिन आपको लोग ये कहना शुरू कर दें पागल है, अरे यार ये पागल है, यार ये पागल है, तो बस समझ लो कि वो दैट इज द टाइम यू नीड। तो कहते हैं ना लोग कि यार हमें कब पता लगेगा हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस दिन लोग आपको ज्यादा गाली और ज्यादा पागल कहना शुरू कर दें, तो समझ लो कि यू आर गेटिंग सक्सेसफुल। और और अगर आपको लोग तारीफ कर रहे हैं और पागल नहीं कह रहे हैं, तो समझ लो कि अभी प्रॉब्लम है, अभी आप ग्रोथ स्टेज में हो, अभी आप इंट्रोडक्टरी फेज में हो। जिस दिन लोग प्रीडोमिनेंटली पागल कहना शुरू कर दें, आप समझ लो आप सक्सेसफुल हो गए हो। ठीक है, आप मेच्योरिटी काफी 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 हमने डीप बात कर दी, डीप ये ये कोई डीप नहीं है, ये मेरा 6 साल का, यार आप सोचो ना, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब कि 700 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एक वीडियो 1 घंटे से कम का नहीं होता है। अब मैंने छोटी सीरीज शुरू करी है, टीम ने बोला है सर वो ताजा खबर टाइप कुछ करो ना यार, तो फिर मैंने कहा चलो, वो अच्छा चल रहा है बाय द वे, कि क्रिप्टो की ताजा खबर एकदम कंटेंट चलने लग गया। लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे 1 घंटा बोलना, 1.5 घंटा बोलना अच्छा लगता है। तो 750 वीडियो बना चुका हूँ, 38,000 सब्सक्राइबर हैं। मतलब एक बहुत मेहनत की के रास्ते पे हम चल रहे हैं, गेम है जो लॉन्ग गेम है। बट मुझे लगता है एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब जो ट्रेडिफाई का जो साइज है, जो जो ट्रेडिशनल फाइनेंस का साइज है, हम उस साइज को ओवरटेक करेंगे, 100% करेंगे, और हम अपनी लाइफ टाइम में Amen. करेंगे। ठीक है। Amen. और क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेडिफाई जिस हिसाब से प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, और जो जो हमारा ऑन चेन से जो नेटवर्क्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑन चेन जो दुनिया है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, और जो ट्रेडिफाई है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो देयर विल बी अ टाइम जब लोग कहेंगे यार ये होता क्या है बिटकॉइन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते क्या है, और वो एक दिन में ना मिलियंस में व्यूज लोग घुसेंगे इसके अंदर। जैसे आज ध्रुव राठी को सुनने लोग जाते हैं, और रचना राणा को सुनने जाते हैं स्टॉक्स के लिए, राइट। तो या अक्षत को सुनने जाते हैं कि यार स्टॉक्स के लिए। तो मुझे पता है 100% कि एक दिन आएगा कि आपका एक दिन में टीम का फोन आएगा कि सर टुडे वी हैव क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में। एक दिन आएगा कि सर हमने इस महीने में 2 बेंचमार्क, मतलब हमने 1 मिलियन दो बारी क्रॉस कर दिया। आई नो दैट टाइम विल। नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर पक्का हो ये ऐसा। आप ऑन चेन मैट्रिक्स आपको बता रही है ना कि दुनिया में मैं तो आई कम फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो ना काशिफ, तो मैंने तो देखा है, मैं जानता हूँ कि बड़े बैंक्स जो हैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। उसके ऊपर जेपी मॉर्गन तो बैंक डिपॉजिट्स टोकनाइज होने वाले हैं, ब्लैक रॉक को देखो ना, ब्लैक रॉक मतलब अगर बिटकॉइन खरीद रहा है तो आपको बिटकॉइन खरीदना ही चाहिए। ये सोचो, तो लाइक बेसिक एडवाइस है। तो देखो सिंपल सी बात समझो, देखो जिस दिन ब्लैक रॉक ईटीएफ लेके आएगा हिंदुस्तान में, सबसे पहला जो ईटीएफ लेके आएगा वो ब्लैक रॉक और जियो का जो जियो का कोलैब जो हुआ है, है, राइट, वो सबसे पहला ईटीएफ आएगा, बिटकॉइन का ईटीएफ। 12 महीने के अंदर आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि सेबी इसमें कूदेगा, और एक आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि भाई हमारे यहाँ भी आ रहा है। जिस दिन हमारे यहाँ आ गया, तुम्हारे यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास लोग हैं स्टॉक्स में, स्टॉक और मार्केट में। उसमें से जो म्यूचुअल फंड में 3-3.5 करोड़ होंगे, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता। ये सारे लोग सबसे पहले यूट्यूब पे जाके देखेंगे भाई ये ईटीएफ क्या होता है, ये ब्लैक रॉक का ईटीएफ क्या है, ये बिटकॉइन का ईटीएफ, बिटकॉइन होता क्या है। आप समझ नहीं रहे हो, ये आपके जो चैनल्स है ना, ये कंटेंट्स जो होने वाले हैं ये इतने मैसिव होने वाले हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स कि काशिफ रजा का आपको ऑटोग्राफ भी नहीं मिलेगा। आपको आज लेना है, आपको आज लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको कल नहीं मिलेगा। नहीं, मजाक मैं कर रहा हूँ पहली यार। मैं
मैं तो बोल रहा 2 साल 3 साल पहले लेना चाहिए था, अभी काफी ये लेट हो चुका है। बट ये परीन ये प्रतीक हितेश भाई जो हंस रहे हैं ना, ये लिटरली बता रहे हैं कि इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। मिलेंगे। बट परीन और प्रतीक, आपका क्या टेक है इस पे? अगेन लाइक एक बड़ा टॉपिक जो सब लोग सबसे डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्लैक रॉक ETF। यू थिंक इस साइकिल में अब हो गया ये एस्टैब्लिश कि इंस्टीट्यूशंस आर हियर, अब वो वाला कॉन्वर्सेशन नहीं बचा कि इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग? डू यू थिंक नाउ वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट कि इंस्टीट्यूशनल मनी आने वाला है क्रिप्टो में? यार आई थिंक ब्लैक रॉक इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन ग्रेस्केल में तो पैसा डाला ही है उन्होंने। वैनगार्ड ने ग्रेस्केल में पैसा डाला हुआ है ऑलरेडी, और वो तीसरा भी जो बड़ा सा फंड है उन्होंने भी डाला है ग्रेस्केल में पैसा। तो हाँ, फिडेलिटी में, तो ये तीनों इन है ऑलरेडी। अगर आज के दिन में अगर किसी को रियली समझना है कि चल क्या रहा है, नॉट गोइंग बाय द नॉर्मल परसेप्शन स्टीरियोटाइप कि ये सेक्टर स्कैम है, सारे लोग स्कैम है, एंड ये सुनते हैं हम लोग सब सुनते हैं आई थिंक कभी ना कभी। तो इट इज नॉट वेरी हार्ड, जैसे काशिफ भाई ने बताया ना कि आप 3 साल बाद जब सेवी, या 2 साल 1 साल जब भी आए, जब सेवी अनाउंस करेगी तब आप जाके काशिफ भाई का वीडियो देखो या आज देख लो, द कंटेंट इज द सेम। उसमें जो फंडामेंटल बात हो रही है वो तो कुछ चेंज नहीं हो रही, उसमें सिर्फ एक बड़े ब्रांड का एंडोर्समेंट आ रहा है। तो ये जैसे हर पॉपुलेशन पूरी बेल कर्व पे है ना, तो अब ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम ये इनोवेशन है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन को फ्रंट रन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इसमें आई है। ये आज तक ना रेडियो में आई, ना टीवी में आई, ना इंटरनेट में आई, ना फोन में आई, ना किसी ऐप में आई। हम व्हाट्सएप में नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे जब वो छोटा था, तभी पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आपको पता भी होता, आप पेटीएम के ऑफिस में बैठे होते तो भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये फर्स्ट टाइम चांस मिल रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बट काम करने के पर्सपेक्टिव से और जनरल एक इन्वॉल्व होने के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर इनोवेशन में फर्स्ट टाइम चांस मिल रहा है। तो आई थिंक ETF जब आएगा तब हम सब लोग, और जितने भी लोग 2011 आई थिंक फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को इंडिया में लाया था, तो जितने भी लोगों ने अब तक कुछ ना कुछ इसमें किया है, उनमें से जिन्होंने पढ़ा है ना अच्छे से, वो सारे लोग टिक जाएंगे। और वो सारे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक रॉक को फ्रंट रन किया इन सम वे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने सोचा आज मैं 100x बनाता हूँ, आज मैं 50x बनाता हूँ, शिबा इनू खरीदता हूँ, कुछ करता हूँ, पैसे बना भी लेंगे ना, तो वो फ्लूक है। वो तो आप कसिनो में जाके भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फ्लूक से पैसा। बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा। उसको सस्टेन करने के लिए पहले तो फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। और ये सोचना कि मैं ब्लैक रॉक जिस दिन ETF आएगा उस दिन खरीदूंगा इंडिया में, मीन्स आप मतलब ठीक है, आप इन्फोसिस 80s में खरीद सकते थे, इन्फोसिस आज भी खरीद सकते हो, तो आपको कब खरीदना है वो आप डिसाइड करो। इट इज नॉट वेरी हार्ड ऑल्सो आज के दिन में कि कोई जाके बेसिक्स समझे। मतलब बेसिक्स अगर बिटकॉइन इथेरियम के समझने हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। बिटकॉइन का तो आपको लिटरली नहीं रहा वो 8 पेज का व्हाइट पेपर है। हाँ, और नहीं मतलब अगर वो व्हाइट पेपर को आप तोड़ फोड़ के काशिफ भाई ने ऑलरेडी डाला है, राइट? तो इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर कोई जिसको बिल्कुल भी टेक नहीं समझता, उसको सिर्फ बेसिक्स पता है फाइनेंस इकोनॉमिक्स का, या बेसिक्स पता है कि गोल्ड कैसे काम करता है, इतना भी पता है ना, तो उसके लिए डिसीजन इज वेरी क्लियर टुडे। तो ये ETF को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये हम सब के लिए जो है अभी बैठे हुए हैं हम, उनके लिए एक माइलस्टोन है कि चलो जब आएगा तब फाइनली आसपास वाले लोग स्कैम बुलाना तो बंद करेंगे। अब आदत पड़ चुकी है, लेकिन बंद कर दो उसको। दैट इज हाउ आई लुक एट ETF। आई थिंक वाटरशेड मोमेंट फॉर द इंटायर इंडस्ट्री 2023 का था, जून में, जब ब्लैक रॉक ने फाइलिंग करी। और उसके बाद से उनके जो CEO है लैरी फिंक, वो एक्चुअली लाइक जाके ऑन एयर बोलते हैं ये कि लाइक बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और लाइक थिंग्स लाइक दैट, व्हिच वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप ये पिछले साइकिल में आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये बड़े बैंक से या बड़े एसेट मैनेजर्स आके ये बोलेंगे। मैं इसके बाद में 2-3 पॉइंट्स लाइक कवर करना चाहता हूँ जो 2023 में हुए। I think Pratik will start with you because you come from the investor side of things. तो शुरुआत जब हुई थी 2023 की, बहुत ही बुरा मार्केट चल रहा था। FTX का डिबैकल हुआ था
और शुरू में ही बाइनेंस के ऊपर केस, कॉइनबेस के ऊपर केस, FTX बंद हो गया है। तो बेसिकली 3 जो सबसे बड़े एक्सचेंजेस थे उन पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वेंचर कैपिटल फंडिंग का एक अलग ही डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो एनी कमेंट्स दैट यू वांट टू मेक ऑन लाइक हाउ दिस स्पेस, क्योंकि अगर आपको याद हो बुल रन में 2020 2021 में क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा आया था इनसाइड द स्पेस, लाइक NFTs के प्राइसेस जो है वो एवरी डे दे यूज्ड टू डबल। तो यू थिंक नाउ वी आर इन अ मोर सेंसिबल वैल्यूएशंस नाउ? आर यू सीइंग लाइक बेटर डील्स और लाइक लेस फ्रॉथ? Yeah. मैं बस पीछे वाला जो परीन ने पॉइंट बोला था, कंटिन्यू एंड आंसर दिस। सो अभी भी आई थिंक लोग बोल ही रहे हैं कि बिटकॉइन इथेरियम इज ऑल स्कैम। लाइक अभी 3 दिन पहले की बात है, वी वर हैविंग लाइक अ दिवाली डिनर, और जो कजिन्स है हु आर इन US, दे आर लाइक, ये क्या काम कर रहे हो तुम, दिस इज नॉट अ गुड मोमेंट और समथिंग टू वर्क ऑन। सो I mean, वो disparity काफी है. So what I've observed is like some retail, who have understood, what this decentralization, what this Bitcoin, Ethereum is. That is one part, but there is still massive amount of people, who are not aware or who are yet to accept, where this thing is going. And उसके दो We I are think too early. causes है. Yeah, they're too early. And उसके दो actually चीजें, like when I see India, right, like there's a lot of information about Bitcoin, Ethereum with the great influencers like Kashif and Hitesh, who are doing it. But on the second side, like consumption hai, and second is creation part of it. So if you see creation, right, like say take those examples of GameFi, jo 2020 Philippines, Axie Infinity and such, moments came out. I mean, the whole part of these new protocols or the new innovations that were happening is to reward users, right? जो Web 2 में there is a hierarchical thing, and Web 3, it's completely decentralized. You have a clarity. I mean, still, we have to go a lot, deep into it. It is just tip of the iceberg. But वो moments आ रहे हैं. People, have started thinking on, how to create that thing, content and consumption side. So India, I think, is going in a very good direction. On one side, we are consuming a lot of data, and second, जो नए startups आ रहे हैं, right, where they are actually building. These are all innovative ideas which people have started building. Startups have already started to think and started to implement part of it. But अभी इसमें क्या हो गया ना, बीच में like छोटा सा hurdle आ गया, like what you said, FTX Luna crash हो गया. Lot of liquidity just vanished, because if you see Luna, right, like almost 45 billion, right, it just vanished एक out. हफ्ते में। जो लोगों ने anchor protocol and stuff like that. And after that FTX का हुआ, people lost interest in that. People didn't knew, like so many venture funds, right, who had kept their money, even they lost the entire thing. So इसमें ये हुआ कि यार It was भरोसा, वो जैसे लेगो गिरता है ना, बेसिकली लूना की वजह से लाइक और पूरा इकोसिस्टम इतना ज्यादा इंटरलिंक था कि बाकी सारों को भी बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ। यस, एंड उसके कारण क्या हुआ कि बीच में फिर जब स्टार्टअप्स रेस कर रहे थे, ऑब्वियसली यू डोंट हैव लिक्विडिटी, ऑब्वियसली यू हैव लॉस्ट टन्स ऑफ मनी, सो पीपल owned back in that. So if you see the venture capital activity, it had fallen like almost 95%, जो last year हुआ था to compare to early this year part of it. But अभी जो positive news आ रहे हैं, more from the retail front, more from the institution front, more from the ETF front, I think liquidity is getting back to a certain extent. But this time, the venture funds or the operators have become more intelligent. Like, just to give an example, people have started really thinking of going deeper due diligence, of people, having like a good governance, but more from a Web3 standpoint and not, as to the Web2 standpoint. So I think innovations वहाँ पे हो रहे हैं, and if people are building in a right way, and if people are building the right product, I think there is a right amount of capital to be put into it. So there is enough scope, for such market. And so Pratik and I work together a lot. मैं भी CoinSwitch Ventures की तरफ से we share like deal flow amongst GravityX and us. तो एक चीज जो हम लोग को हाईलाइट करनी ही चाहिए कि ऑन ग्राउंड एक्टिविटी बंद नहीं हुई है. लाइक लोग बोलेंगे कि प्राइस चले गए तो क्या अब लोग इस स्पेस में बिल्ड करना ही बंद कर दिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. हमारा खुद का फंड जो है वो लाइक 1 साल से थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहा है. मोर देन 350 फाउंडर्स से बात कर चुका हूँ मैं. लाइक 350 फाउंडर्स, मतलब बेसिकली हर दिन एक नया स्टार्टअप जो है ब्लॉकचेन की स्पेस में इंडिया में बन रहा है. ये मैं ग्लोबल भी बात नहीं कर रहा हूँ. तो इससे बस पता चलता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट विच इज इंटरेस्टेड इन द स्पेस. एंड इंडिया के पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि हमारे पास हैं डेवलपर्स.
कोई भी ग्लोबल टीम होती है, उसके जनरली होता है कि उनका कोई ना कोई वेब3 या ब्लॉकचेन डेवलपर्स इंडिया में मौजूद होते हैं। सो 2023 में 2 और बड़े इनोवेशन थे जिस पे मैं प्रॉब्ली हितेश, आई थिंक योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो था बेस का लॉन्च, जो कॉइनबेस की पब्लिक ब्लॉकचेन है। सो इट इज द फर्स्ट पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी जिसने एक अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करी है, और अब आई थिंक और एक्सचेंजेस भी करेंगे ये धीमे-धीमे। एंड सेकंड इज अराउंड BRC20, जो कि बिटकॉइन के ऊपर एक इनोवेशन है। ये 2 चीजें जो अगेन 2023 में ही हुई हैं और इससे पहले पॉसिबल नहीं था। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों के काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। आपका क्या टेक है इस पे? तो अगर बिटकॉइन की आप बात करते हैं तो बिटकॉइन पे इनोवेशंस के अटेम्प्ट पहले भी काफी हुए, जैसे 2014 के आसपास कलर कॉइन करके एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया था, वो दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू काइंड ऑफ लॉन्च दिस टोकनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं अभी, एनएफटी की बात करते हैं, आरडब्ल्यू की बात करते हैं, वो अटेम्प्ट पहले बिटकॉइन पे कलर कॉइन के कॉन्सेप्ट से हुए थे। एंड इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी ट्राई वहाँ पे लोगों ने की थी, काउंटर पार्टी वहाँ से निकला था। तो हमेशा इवन विटेलिक ने प्रपोज किया था बिटकॉइन के इस पे फॉरम पे कि वांटेड टू मेक दिस चेंजेस टू बिल्ड ए काइंड ऑफ ईवीएम लाइक compatibility with Bitcoin. So, but लोगों ने प्रपोजल माना नहीं, लोगों ने उसके एक एग्रीमेंट नहीं हो पाता बिटकॉइन कम्युनिटी में। जब इनोवेशन साइड पे बात आती तो एग्रीमेंट नहीं हो पाता, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस काफी ज्यादा है। और खाली बिटकॉइन पे नहीं, इथेरियम में भी अभी हो गया है, कॉस्मोस में भी हो गया, उस टाइम पे बिटकॉइन पे ज्यादा ये चीजें होती थी। तो तब जाके ये हुआ कि कई सारे इनोवेशन के अटेम्प्ट जो है, स्पेशली जब आपका ये सेगमेंट वाला सीन हुआ था, उसके बाद अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा उनको दबा दिया गया। बट BRC20 वाज द इनिशियल, अभी जो अटेम्प्ट आया टैपरूट के बाद, जहाँ पे उसको, क्योंकि वो कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई कि आप उसको यूज कर सकते हो, ब्लॉक को यूज कर सकते हो, उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप कर सकते हो, ऑर्डिनल्स वगैरह बना सकते हो। तो वहाँ से एक अलग से एक पूरा ग्रुप बना है जिसको ये एरिक और ये लोग यूडी करके 3-4 लोगों ने स्टार्ट किया इनिशियली ये मूवमेंट, और भी कई लोग ज्वाइन उसमें हो गए और वहाँ पे काफी एक्टिविटी अभी स्टार्ट हो गई। बट अभी जो फेस है, स्टार्टिंग का जो फेस है, वो स्टार्टिंग में तो मीम कॉइन्स थे सारे, BRC20 में जो ऑडी और इनिशियल जो कॉइन्स सारे मीम कॉइन्स थे। बट अभी बिटमैप थ्योरी एक है जो मेटावर्स बना रहे बिटकॉइन के ऊपर, तो उनका भी रिसेंटली प्राइस अप्रिशिएशन भी काफी सही रहा है। एंड एक इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर काफी अच्छा रहा उनका जैसी भी सर्विस लॉन्च हो रही है। तो जो चीजें जो प्रोटोकॉल्स इथेरियम पे बने हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स वापस अटेम्प्ट हो रहे हैं बिटकॉइन पे। एक ग्रुप जो है जो उसको ड्राइव कर रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू ड्राइव इनोवेशन, दे आर आल्सो ट्राइंग टू build kind of L2 on Bitcoin, और एक अटैम्प ऑलरेडी हो चुका है, बेबीलोन करके अटैम्प ऑलरेडी हो चुका है जो बिटकॉइन पे L2 है, जो ये यूज करता है रोल अप बेस L2। वैसे तो L2 साइड चेन वाले, साइड चेन तो ऑलरेडी पहले से ही है, जैसे स्पेक्स का ऑलरेडी काफी टाइम से, रूट स्टॉक का है, तो साइड चेन भी उसको ड्राइव चेन वाले अलग ही नाम रखा है, नाम भी लोगों ने बिटकॉइन में थोड़ा अलग नाम के टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो यहाँ पे अभी जो मेरे को लग रहा है ना, ये ऑर्डिनल्स का मेरे स्टार्टिंग में जब थॉट ये थे कि ये एक हाई वेव हो सकती है। आई वाज वेटिंग फॉर द मोमेंट कि अगर सेकंड वेव इसकी आती देन आई विल बी कंफर्म कि आगे चलेगा। सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, एंड बीच में ड्राई पीरियड चला, 4-5 महीने इतना एक्टिविटी नहीं था BRC20 पे। अभी एक्टिविटी ऐसा हुआ है कि रिसेंटली आपने अगर देखा होगा पॉलीगन ने 16 मिलियन ट्रांजैक्शन की फिर से बढ़ गया, चेन जो ब्रेक हो गया था, उनका गैस कॉस्ट भी $0.5 से $1 चला गया था। सो वहाँ पे क्या है, इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे हुए थे। सो इंस्क्रिप्शन इज ये कॉन्सेप्ट जो बिटकॉइन से आया है और दूसरे चेन्स पे भी लॉन्च हो रहा है, और उसपे इंडियन बिल्डर ही है जो उसको लॉन्च कराई, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो ईवीएम लिंक करके उसका करने लगे। हाँ, तो उसने BNB पे भी इंस्क्राइब किए, मार्केट प्लेस बनाया जिसका आप इंस्क्राइब कर सकते हो, BNB पे कर सकते हो, पॉलीगन पे कर सकते हो, इथेरियम पे कर सकते हो, और बिटकॉइन का ही वो कॉन्सेप्ट है इंस्क्रिप्शन वाला। एंड ये जो ऑर्डिनल्स का जो मूवमेंट है अभी और चेन पे भी आ रहा है। जैसे अवालांचे का आज आप देखोगे तो अवालांचे का पिछले 1 महीने में 100% से ज्यादा फीस जो है ग्रोथ हुई है। रीजन फॉर दैट वाज वहाँ पे भी ऑर्डिनल्स वगैरह है, जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में बूस्ट मिला है, ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फीस में ग्रोथ आएगी। सो ये जो चल रहा है अभी इसके अराउंड, ऑर्डिनल्स के अराउंड, दूसरे चेन के ऊपर ये सब डेवलपमेंट चल रहा है, आई थिंक काफी बुलिश है BRC20 के लिए। और आगे जाके अभी मुझे लगता है कि काफी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। इसका रीजन ये भी कि माइनर्स कमा रहे हैं, बिटकॉइन की फीस का जो रेवेन्यू वो अभी काफी पिछले 3 महीने में काफी बढ़ गया है। इवन मैंने बीच में डाला 3 गुना बढ़ गया। तो पिछले महीने जितना गया तो उससे 3 गुना ज्यादा ऑलरेडी फीस बिटकॉइन नेटवर्क कर चुका है। तो यहाँ पे माइनर्स को फायदा है। इनफैक्ट वो माइनर ब्लॉक रिवॉर्ड तो कम हो रहे हैं अभी, अगले साल माइनर फी का जो रेशियो भी है जो व्हिच कम्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन में BRC20 मेनली BRC20 ऑर्डिनल्स के अराउंड जो मूवमेंट। एक सवाल है मेरा हितेश, यहाँ पर आपने बोला कि इंस्क्रिप्शंस अभी एवलांच, पॉलीगन, बाकी चेन्स पर भी हो रहे हैं,
बट बिटकॉइन पे इंस्क्रिप्शन समझ में आते हैं क्योंकि बिटकॉइन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी नहीं है। एवलांच पर और पॉलीगन पर इंस्क्रिप्शंस का क्या फायदा होने वाला है? फायदा तो मतलब ये समझ में नहीं, अभी तो एक वेव है, वो दूसरी चेन पे तो काइंड ऑफ वो हाइप वेव चल रही है कि जैसे ऑर्डिनल्स के कॉइन, वो देखो जनरली क्या लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मीम कॉइन टाइप ही चल रहा है अभी सीन बाकी हम्म, जैसे पॉलीगन पे पोल्स करके लॉन्च हुआ था, तो वो राइट। इसलिए उस पे लोगों ने कर दिया कि अभी ऑर्डिनल का एक कॉइन है ऑडी करके, वो काफी ज्यादा रिसेंटली जी, ऑडी फाइनेंस पे लॉन्च हुआ, राइट। हुई है। सो ये जो ज्यादातर जो चलता है यूजर, मतलब एंड यूजर साइड में जो वॉल्यूम भी आता है, वो कहीं ना कहीं स्पेशली इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पिछले एक महीने सब थोड़ा बुलिश ही चल रहा है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट यूजर का वही ड्राइव करता है, जहाँ पे उनको दिखता है कि प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं यूजर आ रहा है। तो उसी तरीके से ये चीज हाइप वेव दूसरे इंस्क्रिप्शन दूसरे चेंज पे बन रही है। बट BRC20 जो बिटकॉइन पे, वो ऑलरेडी आई थिंक काफी अच्छे स्टेज पे जा चुका है, और यहाँ पे और भी अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, और भी नई नई चीजें बन रही है, तो मेरे एक हिसाब मेरा से काफी कुछ देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। और Yes, इसके Parth. अलावा आई थिंक सेकंड जो आपने पूछा था, बेस का जो बताया, सॉरी, मैं एक क्वेश्चन, या उसका मैं बोल रहा हूँ हितेश, लाइक जस्ट इन द पॉजिटिव ऑफ टाइम, क्योंकि एक दो चीजें और मेरे को कवर करना थोड़ा लाइक अर्जेंट है। एक चीज तो है जो मैं काशिफ को पोस्ट कर रहा हूँ, वो हुआ है ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट। मतलब हमने इस साल जितना बुरा हो सकता था रेगुलेटरी टर्म्स में वो देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज सॉर्ट ऑफ बिकम द व्हाइट नाइट फॉर द इंडस्ट्री। उन्होंने पहले रिपल वाले केस में एसईसी को पीछे किया, फिर ग्रे स्केल वाले केस में उन्होंने फिर ग्रे स्केल के फेवर में रूलिंग करी, और अब हम देख रहे हैं कि बाइनेंस का जो है आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट वाली बात जो हुई है, जो कल से पूरा न्यूज में चाहिए। तो आप इस रेगुलेशन को कैसे देख रहे हैं? मतलब हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है दिस इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री। आप कैसे देख रहे हैं इसको? राइट, देखो जो बात है साफ बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। और बात ये है, आप समझिए डिसेंट्रलाइजेशन किसको पसंद है? आपको पसंद है, आम जनता को पसंद है, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को पसंद नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड? आपको बहुत 10 फायदे दिख रहे हैं उसमें, किसी और को 10 फायदे दिख रहे हैं। जो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं, अगर उनको वो चैलेंज कर रहा है तो उनको फायदा नहीं दिख रहा है, राइट? और इस दुनिया में जो सबसे बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी है, राइट, वो यूएस है। और यूएस कैसे इस इंडस्ट्री को ट्रीट करती है, वो टोन सेट करेगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज का जो हेड है वो यूएस है। यूएस कंट्रोल क्या करता है? अगर आप देखें ना, तो मेरी और आपकी जो माइक्रोफोन पे जो आवाज आप मेरी सुन रहे हो ना, मतलब मेरी माइक्स में बोली हुई बात आपके कानों तक जो जा रही है, इस मीडियम को भी यूएस ओन करता है, राइट? यूएस सैटेलाइट ओन करता है, यूएस डॉलर ओन करता है, यूएस गोल्ड को ओन करता है, यूएस जीपीएस को ओन करता है, यूएस मेरे और आपके बच्चों के बर्थडे के डेटा को ओन करता है, मेरे आपके दोस्त के फोन नंबर को ओन करता है, टेलीकॉम को ओन करता है, जीपीएस को ओन करता है, दुनिया की हर एक चीज को ओन करता है। वो ओन क्या नहीं करता था? वो ओन नहीं करता था क्रिप्टो को। उसने कहा ओके, लेट मी फिगर आउट ये क्लेम कितना बड़ा है, क्या बहुत बड़ा क्लेम है क्या? अच्छा, सबको एक साथ नहीं करता हूं, चलो शुरू किससे करते हैं? C5 से शुरू करते हैं। चलो, कॉइनबेस मेरा है, क्रैकन मेरा है, ठीक है, दुनिया की सारी बड़ी एक्सचेंजेस मेरी है। मेरा है क्या नहीं है? बाइनेंस। अच्छा, लेट मी फिगर इट आउट। बाइनेंस, बाइनेंस को अगर आप देखो तो उसने सीजी के सेटलमेंट, आपको ये छोटी चीज है, मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि सीजी के 3 साल का ऑडिट बिठा दिया है। एक ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर विल नाउ बी द इनसाइडर टीम ऑफ बाइनेंस नाउ, 3 साल के लिए। रिचर्ड कौन है? जो नया सीईओ है बाइनेंस का, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, रेगुलेटर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पैनल पे भी है वो, ठीक है? रिचर्ड कोई आसमान से उतरा हुआ अवतार नहीं है, ये प्रपोज्ड सीईओ है जिसको पुश किया गया है, ठीक है? और तो बाइनेंस भी कंट्रोल में आ गया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन है? बिग 4 में से एक होगा, राइट? बिग 4 कौन है? बिग 4 मेरी कंपनीज है यार, घर की कंसल्टेंसी है, वो उसकी उसकी उसके अंदर आ गई। तो आज की डेट में मेरा कॉइनबेस, क्रैकन, बाइनेंस, एंड ऑफ स्टोरी C5। अब C5 सबसे बड़ा कौन होगा? ब्लैक रॉक। क्योंकि मुझे मेरे को ETF लॉन्च करने से पहले मेरे को इन सबको कंट्रोल करना था, क्योंकि ETF आते ही ETF के लिए बिटकॉइन की बाइंग होती, कहाँ पे होती सबसे ज्यादा बाइंग? सबसे बड़ा OTC बाइनेंस का ही तो है, सबसे बड़ा P2P भी बाइनेंस का है।
तो मैं एक बाइनेंस को बड़ा नहीं कर सकता जो मेरी कंपनी नहीं है, तो मुझे पहले बाइनेंस को कंट्रोल करना था, मैंने कर लिया। अब मैं ईटीएफ लेके आऊंगा। अब जब मैं ईटीएफ लेके आऊंगा तो मेरे सारे C5 मेरा, ब्लैक रॉक मेरा, एंड ऑफ स्टोरी, C5 डोर क्लोज। अब आ जाते हैं दूसरा, हाँ जी आपका और क्या क्लेम है, क्या बड़ा होगा सर? DeFi बड़ा होगा। अच्छा आओ इधर आओ, नेक्स्ट इज DeFi। अच्छा और क्या? प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक, अच्छा वैलिडेटर कौन होते हैं? ब्लैक रॉक ही तो वैलिडेटर है, क्योंकि इथेरियम का ईटीएफ आई इसीलिए रहा है, क्योंकि इथेरियम का ईटीएफ आते ही मैं सबसे ज्यादा इथेरियम को कॉइनबेस के पास रखूंगा, मैं वैलिडेटर बन जाऊंगा। जब मैं वैलिडेटर, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक वैलिडेटर होंगे इथेरियम के, तो वो बोलेंगे ओफेक कंप्लायंट ट्रांजेक्शन ही इथेरियम में जाएगी। और जब ऐसा होगा तो विटालिक को लोग कान में बोलेंगे, यार ये पुराना वाला जो इथेरियम है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये तो कंप्लायंट हो गया है, नया वाला इथेरियम लेके आओ। विटालिक बोलेगा सीरियसली, मैं नया वाला इथेरियम लेके आता हूँ। विटालिक एक प्रपोज करेगा इथेरियम का फोक। ये चैनल को ना रिकॉर्ड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है और डेट नोट कर लेना। YouTube विटालिक एक नया इथेरियम का प्रपोज करेगा, फोक। जब वो फोक प्रपोज करेगा, यूएसडीटी और यूएसडीसी नहीं जाएंगे उस पे। वो बोलेंगे नहीं हम पुराने वर्जन पे रहेंगे, वरना 2 कॉपीज यूएसडीटी और यूएसडीसी की हो जाएंगी। जब वो पुराने वाले पे रहेंगे, इथेरियम जो विटालिक का इथेरियम फोर्क करके लेके जाएगा, उस पर ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि डीफाई सारा यूएसडीसी से और यूएसडीटी से इनेबल्ड है, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट प्रूफ ऑफ स्टेक इज द नेक्स्ट, डीफाई इज द नेक्स्ट। एक ही ड्रीम वर्जन है, एक ही ड्रीम है, वो फैंटेसी है, वो वाइल्ड फैंटेसी है जिसे कंट्रोल करना है, और वो है बिटकॉइन। ठीक है, और बिटकॉइन की ब्यूटी है कि अगर जितनी सप्लाई है उसका 95% भी अगर ब्लैक रॉक उठा ले 1 मिनट को, 95% बिटकॉइन भी अगर ले ले, कॉइन ज्यादा होने से आप नेटवर्क को कुछ कंट्रोल इफेक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। ये ब्यूटी है प्रूफ ऑफ वर्क की। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अभी तो डिसेंट्रलाइजेशन का लिटमस टेस्ट होना है। ये जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं और जो चीजों को सॉल्व करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये किस प्रोटोकॉल पे अपने आप को बना रहे हैं, उस प्रोटोकॉल का टेस्ट होना है। अगर कोई इथेरियम पे प्रोटोकॉल बना रहा है तो अभी इथेरियम का टेस्ट होना बाकी है। प्रोटोकॉल तो बाद जो एप्लीकेशन है उसका तो टेस्ट हो ही गया ना। जब किसी पेड़ की जड़ उखाड़ दी, तो पेड़ के ऊपर फल अगर किसी टहनी पे आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? अगर तो this is what I'm trying to tell you, because sorry I have to leave and this is my closing remark. Sure. पिक्चर अभी बाकी है, टेस्ट अभी बाकी है, इसलिए बहुत सारे जो आप स्टार्टअप्स भी देख रहे हो, बहुत सारी जो इनोवेशंस देख रहे हो, ये अभी टेस्ट से गुजरना बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ने देखो प्रूव करा है, वो आगे भी प्रूव करता रहेगा, लेकिन अभी जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है, जो आप ये सब चीजें देख रहे हो, नेक्स्ट इज DeFi और यूनिस्वैप, परपेचुअल डेक्सेस आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। ये आप लिख लीजिएगा। नहीं काश, आपकी पॉइंट नोटेड है, और ये इनफैक्ट काफी सही। हम लोग आगे का प्रेडिक्ट करने की नेक्स्ट सेक्शन में यही सोच रहे थे कि 2024 में क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर बाइनेंस की न्यूज के बाद हम लोगों ने देखा है कि डेक्सेस के टोकन्स एकदम से पंप हुए, स्पेसिफिकली ये पर्प डेक्सेस के टोकन्स भी। आई थिंक हितेश आपने भी इस बारे में ट्वीट भी किया था कि कैसे लाइक बेसिकली क्रिप्टो यूजर जो है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से प्रॉब्ली डीफाई की तरफ जाएंगे। और इनफैक्ट सीजी का अगर आपने वो ट्वीट देखा, उसने भी उसमें एंड में लिखा है कि आई विल ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डीफाई। तो हो सकता है कि मतलब इन द लॉन्ग रन वी डोंट नो कि रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे चेंज होके आएगा, बट इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म डीफाई की तरफ इंटरेस्ट तो 2024 में मुझे लगता है कि लोगों का बढ़ेगा। आप लोगों का क्या टेक है हितेश, लोगों का प्रतीक, बढ़े, परीन? बिल्कुल बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब C5 पे आप ये देख रहे हो कंट्रोल, तो लोग DeFi की तरफ जाएंगे। एंड सिमिलरली जो रेगुलेटर है वो कहेगा अच्छा ये रास्ता DeFi की तरफ जा रहा है, लेट मी चेक। ये यूनिस्वैप का इंटरफेस किसने बनाया? वो सर अमेरिका में वहां रहता है, न्यूयॉर्क की गली नंबर 4 में, बुला के लाओ, उठा के ले गया उसे। वो हाँ तुमने इंटरफेस बनाया, सर मैं इंटरफेस बंद कर देता हूँ। मैं मानता हूँ इंटरफेस बंद करने से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं होगा, कहीं और से इंटरफेस बन जाएगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो यूनिस्वैप ने भी 200 टोकन्स डीलिस्ट किए थे, ठीक है? तो जब हम ये कह रहे हैं कि टोकन्स डीलिस्ट अगर डेक्स भी करने लग गया, ठीक है, और हमने बाकी परपेचुअल डेक्सेस को भी सेंट्रलाइजेशन देखा, एक नोड जो है वो ट्रेड कर रही है। अभी एक नोड से डिसेंट्रलाइजेशन होती है क्या?
ठीक है, बड़ी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में 1 या 2 नोड है जो उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये तो सेंट्रलाइजेशन ही है। तो मैं जानता हूँ कि लोग चाह रहे हैं कि चलो कॉस्मोस पे चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, बट अभी भी हर प्रोटोकॉल के अंदर सेंट्रलाइजेशन के बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जो सरकार को और रेगुलेटर को पता है। टारगेट कर सकते हैं। मेन चक्कर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, काम ना ऊपर एप्लीकेशंस पे हो रहा है, जबकि हमें जो जड़ है उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। नहीं काशिफ, अगर इसमें मैं प्रॉब्ली प्रतीक भी मुझसे अग्री करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स तो आ रहे हैं, जैसे अभी डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर में एक दो काफी इनोवेशन हुआ है, तो डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर इज अ बिग कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग देख रहे हैं, और मतलब आई एम श्योर लाइक काफी फ्लक्स रहेगा, मतलब चूहे बिल्ली का जैसे रेस टाइप होता है वैसे चलेगा, ऑलवेज रेगुलेशन इज रिएक्टिव रेदर देन प्रोएक्टिव, तो वो लोग भी देखेंगे कि अरे ये इनोवेशन हो गया, अब इसको कैसे रेगुलेट करें। सो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू गोइंग ऑन इन 2024 आल्सो। बाकी कोई और थीम अगर बाकी पैनलिस्ट बताना चाहें कि वो 2024 में किसी थीम के बारे में एक्साइटेड है, तो दिस इज द मोमेंट। I'll start off with Pratik. Guys, I have to take a leave because मेरा ना 5 बज गए exactly, sure, so I have something to take up. Sure. Oh, sure. Thank you. So, thank you so much, Kashif, for your time. Pareen, आपका भी आया है कि आपको भी कहीं जाना है, तो I'll post this question to you then and probably move to Pratik after that. Yeah. Definitely. So, frankly, I don't understand too much of DeFi क्योंकि मैंने कभी TradFi नहीं समझा. But in whatever I have been seeing from investing and other things, I think I'm extremely bullish on a DAO summer. We have forgotten that completely, which is a great sign. I'm a part of a few DAOs that are doing phenomenally well. The way they're working is exceptional, and we had a whole hype. For the users, we had. For the users, Pareen, एक बार बस DAO का थोड़ा सा like लोगों को बता दीजिए, and probably like an example that will help. If you can name those DAOs, that would be really amazing, Pareen. Yeah. I mean, everyone should check out Cabin DAO, Creator Cabins. This basically was a project which said, चलो हम लोग Airbnb की तरह cabin बनाते हैं जंगल में और रहते हैं, हमें मजा आ रहा है। तो 5-10 लोग आए, उन्होंने शुरू किया, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप बनाया। आपको एक टोकन खरीदना पड़ता है उसका पार्ट होने के लिए, उसके बाद में सब कुछ प्रपोजल से चल रहा है। लोग कैबिन बना रहे हैं, उसको रेंट पे डाल रहे हैं, रेंट पे डाल के हम में से कोई भी रहने जा सकता है। जब रहने जाता है तो थोड़ा सा जो रेवेन्यू आता है उसका पार्ट जैसे एयरबीएनबी को जाता है वैसे कैबिन की ट्रेजरी में जाता है। और स्पेकुलेशन बिल्कुल कम है क्योंकि इन्होंने कहीं टोकन लिस्ट ही नहीं किया। ये टोकन खरीदना भी बहुत मुश्किल काम है। मोस्ट लोग जो अभी है डिस्कॉर्ड में, ये सारे लोग टोकन अर्न कर रहे हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द डाओ। सो ये अभी के लिए आई थिंक सोशल तो हमें पता ही है, लेंस फारकास्टर ये वो सब चल ही रहा है, बिटकॉइन पे भी नॉस्टर चल रहा है। आई थिंक दैट इज अ हाइप साइकिल, मोस्टली इसमें कुछ सब्सटेंस दिख नहीं रहा अभी, बट DAOs आर सॉल्विंग कोऑर्डिनेशन टूल्स, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। ये अभी तक हमने इतना इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, बट या दैट्स वन थिंग दैट आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन। अगर किसी को DAO क्या है एग्जैक्टली चेकआउट करना है तो क्रिएटर कैबिन्स जाकर देख सकते हो आप। इट इज फिनोमिनल। वो लोगों ने जो कम्युनिटी बनाई है वो बहुत सही है, कंप्लीट बेयर मार्केट में बनाई है, अंडर द रेडार बनाई है, नो हाइप नथिंग, और टोकन के ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं है। तो दैट्स वेरी reinforcing. Yeah, thanks, Pareen. नहीं, I think Web3 का one of the main points is community building. Community building को like how to put that into a digital framework is via DAO, क्योंकि उसमें like blockchain से आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि हर मेंबर क्या कर रहा है, उसके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोई उसमें मिडिल मैन आके वो नहीं कर सकता कि बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकता कोई भी चीज। तो आई थिंक आपका पॉइंट वेरी वेरी वेल पॉइंट टेकन ऑन DAOs. Pratik, any particular themes that you are interested in? I think my favorite part is the GameFi, right? Like, because Web3 GameFi mein, the way it gives the power to the users, right? The traditional Web2 gaming and how Web3 is evolved, that's like the fundamental. But plus last 2 years mein, I think the kind of innovation which has happened, and if you see, I think Pareen dropped off there. The kind of games I think that are going to get launched in the next 6 to 8 months is going to be phenomenal.
So I think next year, I'm very much looking forward to the GameFi sector, and what sort of genres, what sort of titles, what sort of big Web2 titles and publishing studios coming. I think that will be a game changer. नहीं तो इसमें गेम्स के में साइकिल होता है बेसिकली. लास्ट साइकिल बुल मार्केट में बहुत सारे गेमिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिल गई थी, बट उन्हें एटलीस्ट 1-2 साल लगते हैं टू डेवलप देयर गेम्स. एंड इस साल आई थिंक 2024 में ये काफी इलूवियम आई थिंक विल स्टार्ट द ट्रेंड. इलूवियम इज गोइंग टू बी लाइक अ AAA रेटेड गेम. उसके बाद शार्पनेल आ रहा है. 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप Web3 गेम खेल रहे हो कि Web2 गेम खेल रहे हो. एंड क्योंकि गेम्स में तो इनबिल्ट एसेट्स हैं ही. फ्रॉम टाइम एंड अगेन आपको फीफा खेलते हो या मॉडल कॉम्बैट खेलते हो, कुछ भी आप खेलते हो उसमें कुछ डिजिटल एसेट आपको चाहिए, तो उसको एज एन NFT रिप्रेजेंट करें, ब्लॉकचेन पे रिप्रेजेंट करें. ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अनदर थीम टू वॉच आउट फॉर. फाइनली हितेश, लाइक आपका अगर कोई पर्सनल थीम जो आपको लगता है कि 2024 में इट्स गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेडलाइंस एंड कैपिटल. अभी भी जैसे गेमीफाई में भी मेरा थोड़ा सा ओपिनियन, वैसे तो आई एम बुलिश ऑन गेमीफाई, बट मुझे अभी ये प्रॉब्लम लग रहा है गेमीफाई में कि अभी जब हम जो गेम बन भी रहे हैं Web3 के लिए ज्यादा बना रहे हैं, AAA गेम बना रहे हैं, बट आप मार्केट किसको कर रहे हो? Web3 ऑडियंस को कर रहे हो. तो Web2 ऑडियंस कैसे आएगी? क्योंकि Web2 ऑडियंस के पास तो 1000 ऑप्शन है खेलने के लिए. वो काउंटर स्ट्राइक छोड़ के क्यों सर्कल छोटी. तो यहाँ पे आई थिंक वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितना ऐसा, जितना आप क्लोज लेके जा सकते हो Web2 लेवल के. UX इज द मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ इन Web3 आई वुड से, और इसमें काम हो रहा है, ऐसी बात है काम नहीं हो रहा है. अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो एक वन ऑफ द काइंड ऑफ टैग पे कई सारे पोटेंशियल काफी चीजें हो सकती है उससे. तो कई सारे वॉलेट साइड पे भी काफी काम हो रहा है, बट मेरे को इमीडिएटली जो लग रहा है जो पीक पड़ेगा, पीक जो पकड़ेगा वो होगा मोबाइल डिफाई, जिसपे इवन बाइनेंस की भी स्ट्रेटजी है. बाइनेंस ने Web3 वॉलेट लॉन्च किया है, OKX का Web3 वॉलेट अमेजिंग है. CoinSwitch ने किया है, कई सारे लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस मोबाइल डिफाई स्पेस. राइट, क्योंकि डिफाई का एजुकेशन आपको मोबाइल के थ्रू ही लेके जाना पड़ेगा. कि अभी नॉर्मल बंदे को बोलोगे डिफाई के जो कॉम्प्लेक्स इंटरफेस, उनके इंटरफेस भी वो मैट्रिक्स टाइप बनाती वैसे कि कोई बंदा समझ नहीं पाया. राइट, अब आप कई सारे गेम देखोगे जो पहले पिछले सीजन में आए थे, प्ले टू गेम्स आए थे, उनका मकसद ये था कि टोकन लॉन्च करना. उन्होंने कभी गेम प्ले में काम किया ही नहीं. अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, बट फिर भी अभी भी ज्यादा इल्यूमियम पे भी आप देखोगे लोग अभी भी गेम प्ले की ज्यादा बात नहीं कर रहे, ट्रेलर ज्यादा नहीं देख रहे. उनका अभी भी ये कि फोकस है कि ILB टोकन बढ़ रहा है, तो लोग उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं. तो ये चेंज आएगा ना तब जाके, लाइक गेमीफाई हो या सोशल फाई हो, जो भी काफी सारे बड़े नैरेटिव है, काफी बड़ा उसमें मार्केट आएगा. मास अडॉप्शन का वन ऑफ द गेट वे कह सकते हो इस सारे थीम्स को. तो वहां पे जाने के लिए आई थिंक उससे पहले UX प्रॉब्लम सॉल्व होनी जरूरी है, ऑनबोर्डिंग स्मूथ होनी जरूरी है, जो प्राइवेट की जो रिकवरी वाला सीन होता है वो सॉल्व होना जरूरी है. वो ये सारी चीजें अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी. तो मेरे हिसाब से जितना अडॉप्शन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन और MPC और जो कहने की मोबाइल वॉलेट साइड की चीजों का होगा, उसकी वजह से कहने की गेमिंग, सोशल फाइल, जो भी बड़े नैरेटिव उनको भी पुश मिलेगा. इमीडिएटली जो एक्साइटेड हो जिस थीम के लिए, जो वो थीम है जो सिफाई से लोगों को डिफाई पे लेके आ रही है. परपेचुअल डेक्स जो मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि पूरा जो ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे उसका 1.5% शेयर जो है परपेचुअल डेक्स के पास है. राइट, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है बाइनेंस पे वॉल्यूम फ्यूचर ट्रेडिंग का ही आता है. और जो स्पॉट डेक्स और CX का रेशियो देखो 15% के आसपास है. तो अगर हम 15 उस लेवल पे भी जाते हैं जहाँ पे अभी स्पॉट डेक्स जितना वॉल्यूम कैप्चर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, उस लेवल पे भी अगर परपेचुअल डेक्स रीच करते हैं आने वाले 1-2 साल के अंदर, तब भी 10x ग्रोथ हो सकती है. अडॉप्शन वाइज ग्रोथ, यूजर वाइज, वॉल्यूम वाइज, तो काफी पोटेंशियल है. और अगर परपेचुअल डेक्स के टोटल यूजर भी आप देखोगे तो वो 4000 के आसपास है जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं. तो यहाँ पे परपेचुअल डेक्स विल बिकम ए अमेजिंग थीम आई थिंक आने वाले टाइम पे. और L2s तो खैर है होने वाले, में L2s पे टोकन साइड पे कुछ ऐसा हाल फिलहाल फिगर आउट नहीं हुआ, वैल्यू कैप्चर नहीं है. और L2 इज काइंड ऑफ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेस. आई वुड से इवन कॉइनबेस ने इसलिए लॉन्च किया कि उनको एडिशनल रेवेन्यू वहां से सीक्वेंसर से आ जाता है. डिसेंट्रलाइज करने वाली बात पे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री. मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है उस पे. अगर जो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है वो तो कर सकते हैं कि उसमें फिर जो रेवेन्यू का शेयर जो कम्युनिटी के पास जाएगा, या फिर स्टेकिंग के थ्रू भी अगर उनको शेयर मिलता है तो उनको फायदा है. बट जैसे कॉइनबेस तो मेरे को नहीं लगता डिसेंट्रलाइज करेगा, तो उनका फायदा नहीं है उस चीज. तो ये जो चीजें है ना उस पे आई थिंक ज्यादा चीजें आगे जाके काफी डेवलपमेंट्स होगी. ओवरऑल मेरे को ये लगता है कि UX प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी जरूरी है. और हमको थोड़ा आई थिंक
और हमको वेब 2 एंगल से सोचना चाहिए, हमको अलग से कुछ नहीं बनाना है। हाँ हमको मतलब ये हम लोग का भी लाइक या आप नहीं, ये इनफैक्ट मैं बोल रहा था कि हम लोग का भी कॉन्सेप्ट है व्हाइल वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, एक बहुत बड़ा थीम है इनेबलर्स का, कि मेन स्ट्रीम अडॉप्शन कौन इनेबल करेगा, बी इट अ वॉलेट, बी इट लाइक सोशल लॉगिन, एमपीसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी अलग अलग इनोवेशंस हो गए, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जिससे अब आप लाइक सोशल साइन इन में साइन कर सकते हैं, और मतलब वेब 2 टाइप एक्सपीरियंस दे दो लोगों को। अगर नहीं पता चलेगा वेब 3, उससे आपका कोई लॉस नहीं, उससे आपका फायदा ही होगा। सो I think on that note, we should, wrap things up. Thank you both of you for staying around till the end. I know काफी लंबा चल गया, लाइक ऐसे 1 घंटे से हम लोग ऊपर जा चुके हैं, but there was so much to discuss. मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी काफी चीजें मतलब बात करना रहेगी उनके बारे में, but I think बैंगलोर में इंडिया ब्लॉकचेन वीक और ईथ इंडिया के अराउंड मिलते हैं सब लोग, और फिर लाइक और डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। Definitely. Hitesh, बहुत सारे सवाल थे Thank you आपसे। everyone. Thank you for joining. Maybe next time when we meet, we can discuss the same. Sure, bhai. Thank you. Pakka. Yeah, thank you so much, Hitesh, Pratik, for joining in. Thank you everyone. Bye. Bye-bye. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co.